Let us start a new lesson. Book snapshots. Lesson number 4. Albert Einstein at School. Written by Patrick Pringle. Book snapshots. Lesson number 4. Albert Einstein at School. Written by Patrick Pringle. Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. वैसे हम जानते हैं कि कई लोगों को स्कूल बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता. Nowadays, most of the students they buy the material online and learn by themselves. They don't want to waste their time in schools, and so after crossing 10th class, we can commonly see this, that the students are not willing to go to school. Some students are eager to go to school and learn something, but other students, they are depending upon their tuitions and all other activities, so they don't want to go to school. Anyway, problem is there whether we are intelligent or not. The great scientist Albert Einstein faced a lot of problem in his own school because of the teachers. Today we will learn something about Albert Einstein at school. So let us start the lesson. Okay. In what year Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? Question. In what year did the Prussians defeat the French at Waterloo? Answer. I don't know, sir. Why don't you know? You have been told it often enough. कई बार सिखाया पढ़ाया फिर भी क्यों नहीं आता? I must have forgotten. भूल गया होगा सर. Did you ever try to learn? asked Mr. Brown. History teacher Brown seriously पूछा. कभी कुछ पढ़ने का कोशिश किया है क्या तू? No sir. Albert replied with his usual unthinking honesty. वो जवाब दे दी, नहीं सर. Why not? I can't see any point in learning dates, sir. One can always look them up in the book. डेट याद करके क्या करना है सर? जिसको देखना है तो किताब में देख के समझ लो. Mr. Brown was speechless for a few moments. गुस्सा आ गया उन्हें. थोड़ी देर सोचा क्या करूं. You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in book? देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें किताब में देख के सीखना होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी सिखाने में क्या जा रहा है? But that applies to all the facts you learn at school. हर चीज़ें किताब से और स्कूल में नहीं सीख सकता है. किताब तो देखना पड़ता है. यस सर. हाँ सर. यहाँ फैक्ट्स का मतलब है नॉन एंड प्रूव्ड थिंग्स, तथ्य के बारे में. Then I suppose you don't see any point in learning facts. का मतलब तुम फैक्ट्स में कोई इम्पोर्टेंस नहीं देख रहे? Frankly सर. बिल्कुल सर. I don't said Albert. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर इसमें.
देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो इसका मतलब एजुकेशन में विश्वास नहीं है। ओ सर, यस आई डू। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। फैक्ट्स का मतलब ये थोड़ी है शिक्षा, ये नहीं, मैं नहीं मानता। In that sense, said that history teacher will heavy sarcasm. Perhaps he will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. जरा बता दे तुम्हारे हिसाब से एजुकेशन क्या है। वो थोड़ा टॉन्टिंग करते बताया, सार्कासम। जरा बता दे तुम्हारे हिसाब से एजुकेशन क्या होता। आल्बर्ट फ्लश्ड, इंसल्ट हो गई उसकी। आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। सर फैक्ट्स का क्या मतलब है, आइडियाज ले लो ना। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द बैटल्स विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। सर मैं ये बता रहा हूँ, मुझे डेट से कोई मतलब ही नहीं है, कौन सा युद्ध में कौन सबसे ज़्यादा लोगों को मारा है, मुझे इस चीज़ों का मतलब कोई ये नहीं है सर। I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. हाँ, ये बात आ जाए तो थोड़ा मज़ा आता है मुझे कि वो सोल्जर्स दूसरों को मारते क्यों हैं, तो मुझे इंटरेस्ट होता है वो पढ़ने में। इट इज़ नॉट ए माई विश सर। दैट इज इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वेयर कोल्ड एंड क्रूअल। बहुत है, गुस्सा आ गया टीचर को। We don't want a lecture from you, Einstein. भाषण मत दो हमें। You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. हाँ, तो तुम्हें पनिशमेंट रूम में आज एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा। वैसे कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, फिर भी ज़्यादा बोलते हो ना, इसीलिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड इधर। तुम्हें भी कोई फ़ायदा नहीं, स्कूल को भी कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर अ डिसग्रेस। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। ये एक इंसल्ट की बात है, न जाने तुम क्यों स्कूल में आते। इट इज़ नॉट माई विश सर, आल्बर्ट पॉइंटेड आउट। सर बताऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है, मजबूरी है मेरी। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योरसेल्फ। फिर तो तुम्हें तो बस शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक अवे। बताओ तुम्हारे पिताजी से बोलो तुम्हें यहाँ से ले जाए। Albert felt miserable when he left school that afternoon. क्लास के बाद घर की ओर गए और जहाँ रहते वहाँ की ओर गया तो थोड़ा असंतुष्ट थे, दुखी थे। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, इसलिए नहीं है कि दिन मतलब बेकार था। मोस्ट डेज वेर बैड नाउ। वैसे तो अधिक से अधिक दिन तो ऐसे ही रहता है। एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द फेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। अरे यार, दूसरा दिन भी सुबह आके इसी स्कूल में आ जाना। आई हेट दिस स्कूल, आई हेट द प्लेस। दुख तो यही है, तो कल भी यहीं आना ही है। एंड ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। वैसे तो टीचर ने हिंट दिया पापा को, बोल दो ले जाए इधर से, वो थोड़ा अच्छा लगा। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। लेकिन कारण क्या है, क्या बोलूँ, पापा को क्या बताएं। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। अगर पापा को कुछ कह भी दे, पता है क्या आंसर देगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, दिस विल बी द आंसर। नहीं, तुम्हें अभी जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, तुम्हें पूरा डिप्लोमा पास करनी है, क्लास पास करनी है। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। लॉज में जाके, मतलब हॉस्टल, हम यहाँ हॉस्टल कहते हैं, वहाँ लॉज में जाके थोड़ा मज़ा नहीं आया। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. उनको पता है पापा का कंडीशन,
मुश्किल से यहाँ एक कमरा ढूंढ के दिया है म्यूनिक में। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट और इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस। चलो वहाँ का खाना अच्छा तो है नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ कोई आराम तो है नहीं, कोई बात नहीं, और इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, वो भी कोई बात नहीं, गंदगी, स्क्वालर, अनप्लेजेंट सिचुएशन, बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस। लेकिन ये लोग तो लड़ते रहते हैं हमेशा। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। लैंडलेडी पूछो ही मत, वो तो अपने बच्चों को सूत लेती। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। सैटरडे को उसके पति दारू पी के आ जाते तो पत्नी को उठा के सूत लेते। क्या कॉम्बिनेशन है। पत्नी बच्चों को मारते और पति पत्नी को मारते। मज़ा आ गई। बट एटलीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। यूरी उसका दोस्त, जब उससे ये बात बताया तो वो बताया, अरे कम से कम तुम्हें तो कमरा तो दिला रहे तुम्हारे पेरेंट्स, ये तो बड़ी खुशी की बात है। At least you will live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. अरे वो तो छोड़ दो, तुम तो कम से कम सिविलाइज्ड लोगों के साथ रहते ना। बच्चे गरीब है फिर भी तुम जहाँ रहता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड जगह है। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी प्रिपेयर्ड। नहीं नहीं नहीं, तुम जैसा सोचते वैसे नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ दम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूअल। ड्यूअल है दो जने के बीच की लड़ाई, द्वंद्व युद्ध। अरे दो जने के लड़ाई के बीच में एक तो मारा गया, पता होगा तुम्हें। हमारी गली की बात ऐसी है। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। लेकिन उसको किसने मारा, उसके साथ क्या हुआ पता है? नथिंग ऑफ कोर्स, कोई कानून कुछ नहीं। एंड ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। मारने के बाद वो गर्व कर रहे कि मैंने उसको मार दिया। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूअल्स। अधिकारी लोगों ने उसको ये वार्निंग दिया, दोबारा कोई ड्यूअल्स नहीं मारना, लड़ना मत। देखते हैं ना, बॉक्सिंग मारा जाए तो मारा जाएगा, सामने वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और ड्यूअल्स में क्या है सर, दो तरह का ड्यूअल्स होता है। एक तो अपने आप डिसाइड करके लड़ते हैं, और सरकारी तरफ से यूँ कंपटीशन के रूप में लड़ाई रखी है, कंडीशन रखी है, तो इस तरह के। लेकिन किसी का जान लेने के बाद कोई परवाह ही नहीं। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज नॉट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वेयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैज ऑफ ऑनर। वो क्या कह रहे, अरे यार तो मेरा ज़िंदगी में अगर कोई पूछे तो मैं लड़ाई में भाग लिया तो मेरा शरीर में कोई निशान तो दिखाई दें, ताकि मैं प्रूव करें ये तो लड़ाई के बीच में हुआ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे शरीर में आज तक। exclaimed but and these are the student। देख ले ऐसे बच्चे। well you will be a student one day said यूरी। देखो भैया तुम्हें एक दिन एक अच्छा स्टूडेंट बन जाओगे। आई डाउट इट, मुझे लग नहीं रहा, said Albert gloomily, sadly। I don't think I will ever pass the exam for the school diploma। मुझे लग ही नहीं रहा मैं स्कूल का डिप्लोमा पास हो जाऊँ। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich। जब एल्सा उसकी कसिन जब म्यूनिक में आए तो उसको भी बता दिया। नॉर्मली शी वुड इन बर्लिन, वो तो वैसे बर्लिन में रहती है, जर्मनी का कैपिटल। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, उसके पिताजी वहाँ कुछ बिजनेस कर रहे वहाँ। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम आल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, सी सेड। तो उसने तसल्ली दिया, देखो भैया ऐसी कोई बात तो है नहीं, अगर तुम थोड़ा कोशिश तो करोगे ना तो पास हो जाओगे। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर। बहुत सारे और बेवकूफ़ बच्चों को मैं जानती हूँ, तुमसे भी बेकार। हु गेट थ्रू, वो निकल गए, पास हो गए। दे से
You don't have to know anything. You don't have to understand what you are taught. तुम्हें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, जो तुम्हें जो पढ़ाते हैं ना उसमें थोड़ा ध्यान देना और मन में समझ के रखना. जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम. वही चीज़ एग्ज़ाम में लिखना है. जैसे हमारे जैसा तो नहीं है. एडवाइस देखो, हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाते समझ में नहीं आता, ट्यूशन भी जाते हैं वहाँ भी समझ में नहीं आता, फिर ऐसे परेशान होते रहते हैं. वो क्यों? जब पढ़ाते समय ध्यान नहीं देते दोनों जगह में. इसलिए जहाँ भी पढ़ाए एक जगह में ऐसा दैट दे दो जो मन में रहे. कोई रटने का ज़रूरत नहीं है, इतना सारे किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं. टीचर जो सिखाते हैं उसको एक बार मन में रखने का कोशिश करो. दैट विल रिमेन देयर, दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. तो हमें दिन रात बैठ के नींद खराब करके रट के पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं. दैट जमाना हैज़ गॉन. आजकल रटने का कोई काम तो होता ही नहीं. जो सामने आता है तो उसको लिखो. सो यू हैव टू listen to the teacher what they are teaching, and you have to keep some points in your mind that will help you in the examination. That is all what you want to do. समझ रहे हो? बहन की एडवाइस ऐसे. हमें तो ऐसा एडवाइस मिला है तो बोलेंगे तो जा जा फालतू दिमाग खराब मत करे. यही हमारी जो एडवाइस होगी. दैट इज द होल ट्रबल. से तो यही तो बात है ना. आई एम डूइंग गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. मुझे रटने नहीं आता, मुझे पसंद भी नहीं है कोई चीज़ रटना. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट. हो सकता है तुम इसमें अच्छा नहीं हो. एनीवन कैन एल लाइक ए पैरट. कोई भी तोता जो बोलने वाली बात को रिपीट करके सुनाते वैसे कोई भी कर सकता है. यू जस्ट डोंट ट्राई. कोशिश नहीं करना. And yet I always see you with a book under your arm. देखो तुम्हें रटने का इच्छा नहीं तो तुम्हारे पास हमेशा किताब रहता है. ये तो मैंने ध्यान दिया. एडेड एल्सा. व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग? फिर तुम पढ़ते क्या है उसमें? तुम्हें पढ़ने का रटने की इच्छा नहीं. तुम्हारे पास जो किताब है वो क्यों लेके घूमते? क्या पढ़ते हो तुम उससे? ये बुक कौन? जियोलॉजी. ये तो जियोलॉजी की बुक है. साइंस रिलेटेड टू स्टडी ऑफ अर्थ. भूविज्ञान के बारे में जो जानकारी है उसी की किताब है. बेंजी है जियोलॉजी. रॉक्स एंड थिंग्स. डू यू लर्न दैट? हो चट्टान, जमीन, ऐसे चीज़ें सीखते हो तुम? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. प्रॉब्लम ये ना, हमारे स्कूल में साइंस होते ही नहीं. देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट? फिर पढ़ते क्यों हैं? बिकॉज आई लाइक इट. क्योंकि मुझे ये पसंद है. Isn't that a good enough reason? क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है? मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ. इसलिए 10th क्लास के बाद हमें एक सिलेक्शन देते हैं आपको कौन सा पसंद वाला सब्जेक्ट आगे पढ़ना है. मज़े की बात यही है कि वो तो आप इवन आफ्टर सेलेक्टिंग आवर सब्जेक्ट वी आर नॉट गिविंग मच बॉदर अबाउट द लेसन्स एंड लर्निंग थिंग्स. यही तो प्रॉब्लम है. एल्सा ने बोला यू आर राइट. ऑफ कोर्स आल्बर्ट, शी सेड, बट इट वॉन्ट टू हेल्प यू योर डिप्लोमा. तुम यहाँ जो पढ़ाते वो नहीं पढ़ रहे, तुम साइंस पढ़ते रहे तो डिप्लोमा में वो थोड़ी आएंगे साइंस. तुम तो व्हाट यू विल डू? क्या करोगे तुम? अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. इसके अलावा उसको म्यूज़िक बहुत पसंद है. वो वायलिन बजाते, कुछ लोग वायलिन बोलते हैं, इट्स रॉन्ग. वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप. ये बजाते रहते फिर वो लैंडलेडी बीच में आया, अरे बंद कर ले, क्या हो गया, बहुत हो गया, लोगों को सोना नहीं है. फुट करते रहते. इस तरह से जब बोलती है तब जाके वो बंद कर लेती. सो learn the lesson and try to understand something. Okay.